Welcome back to our mathematical exploration channel, Adam Academy. I'm Arifa. Today, we are diving into the fascinating realm of numbers, filled with secrets, patterns, formulas. It's the world of arithmetic progressions. Stick around as we unravel the mysteries of the first term, common difference, enchanted formula that allows us to predict the value at any step of our mathematical journey. Let's get started. Here you can find the list of numbers, right? The list of numbers you can find here, where this is called as a terms. So each list of number is called as a term. So 1 is a term, 3 is a term, 5 is a term, 7 is a term. So these are all called as terms, right? So here, so first number is called as a first term. It's called as first term. First term is denoted by A. First term is denoted by A. Now here you can see here some pattern over here. Here you can see the difference between these two numbers, consecutive numbers. Okay, so 3 minus 1 is 2. 5 minus 3 is 2, right? 7 minus 5 is 2. You can see the common difference. It's a constant, right? So this has got a common difference. Now we call this as CD, common difference. D is equal to 2, we say here. We have got 2. Here, as you can see, 25 minus 28 is minus 3. 22 minus 25 is minus 3. 19 minus 22 is minus 3, right? So here the first term, A is equal to 28. And what is the common difference we have got here? Minus 3. I hope this is clear. Now the same here also goes. So A is equal to 10. The first term is 10, right? So the common difference, 20 minus 10 is equal to 10. 30 minus 20 is equal to 10. 40 minus 30 is equal to 10. So here you can see the common difference is 10, right? So we have got a differences here. The same here also. Here you can see the same you're supposed to do as I've done here. Now 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. Now here, so A is the first term. First term is 2 here. What is the difference we have got here is 0, right? So this is called as arithmetic progressions, right? Now here let us check. So all this has got a common difference, right? So which has got a common difference, we call this as AP, that is arithmetic progression. Okay, now let us check here. Here you can see the first term is A. First term is equal to 2. Okay, now let us check the difference. 4 minus 2 is equal to 2. 8 minus 4 is equal to 4. 16 minus 8 is equal to 8. It has got a common difference. Can you see? You have got 2, 2, 2, minus 3, minus 3, minus 3, 10, 10, 10. Do you have the common difference? No, we don't have in common. So all these are indifferent. So it is not an AP. Not an AP. If it is an AP, then we can find out the common difference. But here we don't have a difference, common difference at all. Now यहाँ पे check कीजिए. 6 minus of minus 10. ऐसे 6 minus of minus 10. तो 6 minus to minus is plus 10. तो ये बन जाएगा 16. This is 16 इसका difference. Now here यहाँ पे देखिए minus 2 minus 6 सेम साइन है, ऐड कर लो, यू आर गोइंग टू गेट minus 8. यहाँ पे देखिए minus 8. तो यहाँ पे minus 2 minus of minus 2 is equal to, you can see minus 2 minus 2 minus is plus 2. So you get 0. तो यहाँ पे हमको common difference आया है? No, we didn't get any common difference at all. So it is not an AP, students. ऐसे ही आप A भी कर लो, चेक कर लीजिए. minus 4 minus 0 is minus 4. 1 minus of minus is plus. 1 plus 4 is equal to 5. 3 minus 1 is equal to 2.
यहाँ पे देखिए, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, हमको -452 मिला है. डू वी हैव अ कॉमन डिफरेंस? नहीं, वी डोंट हैव एनी कॉमन डिफरेंस एट ऑल. सो अगेन इट इज नॉट एन एपी. जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में हमको कॉमन डिफरेंस मिला है तो इसको हम एपी बोलेंगे. जिस लिस्ट में हमको कॉमन डिफरेंस नहीं मिला है तो वी कॉल दिस एज, no, it is not an AP at all, students. I hope this is clear to you all. So what is AP? AP is a sequence of numbers arranged according to some rule or in a particular order. Okay, students. Now here the two consecutive numbers is a constant. You can see here. So this constant is called as a common difference and it is denoted by D. And the first term is called as A. So for this, the general formula, the general form of AP will be A plus D, A plus 2D, like this, A plus n minus 1 into D, A plus n minus 1 into D. यहाँ पे देखिए, let me check. अभी यहाँ पे देखिए 1, first term is 1. तो second term A plus D, 1 plus 2 is equal to 3. 1 plus 2 is equal to 3. Then again 1. देखिए अभी यहाँ पे first यहाँ पे check कर लीजिए. According to this, let me show you. So 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 2 is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7. ऐसे आपको आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 minus 3 is 25. 25 को -3 कर लो, आपको 22 आ जाएगा. 22 को -3 कर लो, आपको 19 आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 डालूंगी, देखिए a इज इक्वल टू 1 डालूंगी, देन a इज इक्वल टू 1 प्लस इसका डिफरेंस जो आ जाएगा 2. ना a 1 होगा, 2 इंटू d का वैल्यू होगा 2, ऐसे. तो यहाँ पे चेक कीजिए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. अभी 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5. ऐसे आपको सारे नंबर्स आ जाएंगे. सो डिडंट आई गेट द सेम वैल्यू हियर, राइट? तो ये होगा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होगा ये a प्लस डी, a प्लस 2d टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हम इसको फर्स्ट टर्म बुलाएंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म टिल nth टर्म. फर्स्ट टर्म, second term, third term, and this is nth term, right students? So here this is first term A1, this is second term A2, this is third term A3, okay, this is nth term. So यहाँ पे देखिए A1 is A, A2 is equal to A plus D, A3 is A plus 2D, ऐसे. nth term, इसको हम even we can say T1, T2, T3, okay, so till Tn ऐसे भी बोलेंगे हम. ठीक है, तो हम A1, A2, A3 भी बोल सकते हैं या फिर T1, T2, T3 भी बोल सकते हैं. So therefore An is equal to, so we got a formula, the nth term of an AP can be found by using a formula An is equal to A plus n minus 1 into D. So this formula helps you find any term in the sequence without having to write out all the previous terms. Okay, so this is the formula students. I hope this is clear. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फॉर्मूला डालेंगे और सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालेंगे, बस इतना ही. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आरिफा. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं 5.1. So here the first term is given and as well as a common difference is given. So we need to find the 4 terms. अब यहाँ से 4 terms हमको find करना पड़ेगा. कैसा देखिए, so first term is 10, okay, second term, so मतलब 4 terms we need to find out. So यहाँ पे 10 ऐड कीजिए, 10 plus 10 is 20, okay, 20 plus 10 is 30, 30 plus 10 is 40. So we got the 4 terms, right? ऐसे तो हर एक मतलब फर्स्ट टर्म आप लिख लो तो ये ऐड करते ही जाओ. So you get a AP terms, right students?
अभी नेक्स्ट सम देखिए। सो यहाँ पर भी मतलब 4 टर्म्स निकालना है। सो फर्स्ट टर्म इज -2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते जाओ। -2 + 0 इज -2, -2 + 0 इज -2, -2 + 0 -2। ओके, दीज आर 4 टर्म्स। तो आपको सिर्फ 4 टर्म्स पूछा गया तो सिर्फ 4 टर्म्स ही फाइंड करना है। ओके, सो दीज आर 4 टर्म्स स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 डाल देते हैं। ओके, 4 - 3, 4 - 3 इज 1। ओके, 1 - 3 इज -2, -2 - 3 इज -5। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ना 10 प्लस फर्स्ट टर्म 10 डाल दीजिए, 10 + 10 20 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म 20 + 10 आपको 30 आ जाएगा, 30 + 10 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म आप -2 डाल लो, -2 + 0 -2, -2 + 0 आपको -2 आ जाएगा, -2 + 0 इज -2। होप इतना क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म आप लिखो 4, तो 4 - 3 इज 1, 1 - 3 इज -2। देखिए 1 - 3, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिलेगा 2 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ऐसे -2 आ जाएगा। सो -2 - 3 आपको आ जाएगा, सेम साइन है, आप ऐड कर लो ऐसे -5, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। अभी फर्स्ट टर्म आप लिख लेती हूँ -1। सो -1 + हाफ, -1 + हाफ, ठीक है। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2, 1 × 1 इज 1, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लो, ग्रेटर नंबर साइन डाल दो, यू गेट हियर -1/2। आप -1/2 को +1/2 कर लो, -1/2 + 1/2, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। 0 + हाफ इज इक्वल टू हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे वन सेकेंड आई एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म आप डाल लो, ठीक है। -1 को ना आप हाफ ऐड कर लो, ऐसे यू आर गोइंग टू गेट -हाफ, ठीक है, -हाफ। अब -हाफ को +हाफ कर लो तो यू गेट 0, मैंने 0 डाल दिया। 0 को हाफ ऐड कर लो, यू आर गोइंग टू गेट हाफ, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। तो हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं -1.25, फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। -1.25 को ना ये ऐड कर लीजिए, -1.25 -0.25, 5 + 5 10, okay, 5 you are going to get point, so 1, तो आपको मिल गया -1.50। फिर से आप ये सेम नंबर डाल लीजिए, -0.25, ठीक है। दिस इज 5, आपको मिलेगा 7, 1, सो दिस इज माइनस ऑफ -1.75, ठीक है। आप इसको ना जो भी है ना इसको सेम वैसे ही डाल लीजिए, ठीक है। 5 + 5 10, 7 8 9 10, okay, so this is 2 which is -2, -2.0। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। अगर आपको a वैल्यू d वैल्यू दिया गया है तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स आप इजी से फाइंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट 4 टर्म्स बोलेंगे या 5 टर्म्स या 6 टर्म्स, ये इजी है, बस ऐड करते जाना है स्टूडेंट्स, राइट। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आरिफा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये सारे एपीज है, इट्स ऑलरेडी बीन गिवन दैट इट इज एन एपी, सो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट नंबर दैट इज a इज इक्वल टू 3 एंड इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, चलिए डिफरेंस 1 - 3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, राइट। नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, -1 इज इक्वल टू -2। आप कोई भी नंबर आप सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म आप देख लीजिए कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -2 ही आएगा। आप डायरेक्टली -2 डाल दीजिए। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो फर्स्ट
1 -3 अब स्टार्टिंग का एक कर लीजिए, काफी है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ये इज इक्वल टू -5 हमको मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस, सो -1 माइनस ऑफ -5, तो ये होगा -1, -2 माइनस इज +5। तो ये जो है मतलब ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस। तो वैसे ही 3 माइनस ऑफ -1, सो 3 -2 माइनस इज +1 विच इज इक्वल टू 4। देखिए कॉमन डिफरेंस हमको सेम आया, तो d इज इक्वल टू 4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। चलिए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लो न्यूमरेटर। 5 - 1 इज 4। तो नेक्स्ट ले लीजिए 9 - 3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखो 9 - 5 इज 4, तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 4/3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1/3 एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे आपको मिलेगा 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पे 1.1। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, ओके, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ओके, ऐसे फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे। तो अभी हम 2.8 माइनस 1.7 कर लेंगे, तो यू गेट 1.1। तो देखिए आपको जो है कॉमन डिफरेंस 1.1 ही मिला है, सो आप डायरेक्टली 1.1 डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। आपको फर्स्ट टर्म मतलब जो भी फर्स्ट वाला है तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, दैट इज ए, वो आप सारे लिख लीजिए। डिफरेंस जो है ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा कर लीजिए, तो आपको जो है डिफरेंस, सारे कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आरिफा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर यहाँ पे सीरीज देकर है, तो हम इसको एपी है या नहीं वो चेक करना है। कैसे चेक करना है? इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के। अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया तो वी नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 - 2 2 होगा, 8 - 4 4 होगा, 16 - 8 8 होगा। इज दिस AP? No, it is not in AP. It is not an AP. ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये AP में है या नहीं चेक करते हैं। ठीक है, 5/2 - 2, सो 5/2 - 2 मतलब ये होल नंबर, तो इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, इज इक्वल टू 1 5 = 5 माइनस 2 2 = 4 अपॉन 2 1 = 2, तो ये आपको मिलेगा 1/2। नेक्स्ट टर्म देखिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म इज 3 माइनस 5/2, तो ये होल नंबर है, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 3 = 6 माइनस 1 5 = 5 अपॉन 2 1 = 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब इनका जो है इसका कॉमन डिफरेंस है, दैट इज D। D इज इक्वल टू हाफ आ गया, तो मतलब A, दिस इज इन AP, सो दिस इज इन AP। अभी यहाँ पे 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 7/2 प्लस हाफ, जो भी सक्सेसिव नंबर्स आएंगे उसको हाफ से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 7/2 प्लस हाफ करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐड कर लेते हैं। 7 + 1 is 8, 2 1 = 2 4 = so you got the term as 4। फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 4। अभी नेक्स्ट टर्म देखते हैं। सो 4 को सक्सेसिव नंबर हमको 4 मिला है, 4 + हाफ, 4 + हाफ, तो मतलब ये होल नंबर, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 4 = 8 प्लस 1 1 = 1 अपॉन 2 1 = 2, तो 8 + 1 is 9/2। ठीक है, तो इसको ये बन गया 9/2। ओके, एक हो गया। अभी 1 मोर टर्म, सो 9/2 प्लस हाफ कर लेते हैं, 9/2 प्लस हाफ, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर लेते हैं। 9 + 1 = 10,
सो 2 1 जा 2 5 जा इज इक्वल टू 5। तो हमको मिला है 5। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? दिस इज एन एपी। क्यों? बिकॉज वी गॉट अ कॉमन डिफरेंस हाफ। ठीक है, डी इज इक्वल टू हाफ मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे 7/2 प्लस हाफ कर लो 4 आ जाएगा, 4 प्लस हाफ कर लो 9/2 आ जाएगा, 9/2 प्लस हाफ कर लो आपको 5 आ जाएगा। ऐसे आपको मिल गया सेकेंड। अभी थर्ड में जाएंगे। अभी ये इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3/3.2 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0। ऐड मतलब माइनस टू माइनस इज प्लस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट साइन है तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 2 इज 0, 3 - 1 इज 2। ओके, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म इज माइनस 5.2, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 3.2। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यू आर गोइंग टू गेट -2। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो है -2। आपको अगर समझ में आ गया, ठीक है, चलो दिखाते हैं और एक बार। -3/2 सेकेंड टर्म माइनस ऑफ -1.2, ऐसे -3.2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1.2। अभी आपको समझ में आ गया ऐसे। तो मुझे ना जो कॉमन डिफरेंस मिला है -2 इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हर एक टर्म को ना हम -2 ऐड कर लेते हैं। अभी -7.2 -2 कर लो, यू आर गोइंग टू गेट सेम साइन, ऐड कर लो, यू आर गोइंग 7 8 9 विच इज माइनस। तो यहाँ पे मुझे मिला है -9.2। 9.2 को -2 कर लो। ठीक है, ऐसे 0.2 9 10 11, सो ऐसे आ जाएगा -11.2। ओके, -11.2 को मतलब -2 कर लो। ठीक है, 2 पॉइंट, अभी 11 प्लस 2 कर लो 13 मिल जाएगा, विच इज -13.2। होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी। आप ना आगे सम्स भी आप ऐसे ही कर सकते हो। पहले ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आप ऐसे ना कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो हर एक नंबर से आप ऐड कर लीजिए, बस उतना ही। राइट स्टूडेंट्स।